Chalo students, let us start with the next concept now. Okay, I hope each one of you will be very active throughout this session. I want everyone to be very active. अगर आपको ना समझे तो भी मुझे बताओ, समझ में आ रहा है तो भी मुझे बताओ, and let me understand कि you are enjoying this session. ठीक है, कुछ भी ना समझ में आए, immediately you will ask me. Okay, Ayush and Kuljit, है ना? The two newcomers. Anyone else who is attending this session for the first time, students? Anyone else? Okay, just two of them. Chalo, let us begin, students. So now what we're going to see is, okay. Parth is also there. Prem is also there. Acha, Prem, this is your first session. Shonit, okay, Shonit. ठीक है. All right, Parth. All right, Parth and Prem, have you people gone through the last lecture recordings? Parth and Prem. You can switch on your audio and let me know now. Parth, Prem and Shonit. Didn't got the link yet. No, sir. Okay. No problem. You can ask on WhatsApp group after this lecture ends, okay, and get it from ma'am, or I'll just post it. I have the link with me. So just remind me on the WhatsApp group. Okay, sir. Thank you. Yeah, please go through the lectures so that you will understand the session in a much better manner. But today's topic, which I'm starting, students, this is totally new topic. And for the newcomers, if you are well aware of the names of alkanes, like 2 carbon containing alkane is known as ethane, 3 carbons containing alkane is known as propane, 4 carbons containing alkane is known as butane, accordingly pentane, hexane, heptane, octane, nonane. अगर यहां तक आपको ये इंफॉर्मेशन आती है जो हमने क्लास 10 में पढ़ा है, तो आपको ये सेशन समझ में आ जाएगा. नो प्रॉब्लम एट ऑल. ओके, ऑलराइट स्टूडेंट्स. चलो, बट इवन देन अगर ना समझे तो कोई टेंशन नहीं लेना है, सीधा आपको ऑडियो ऑन करके मुझे बोल देना है, सर ये वाला मुझे नहीं समझा, आई हैव नॉट अंडरस्टूड दिस, प्लीज रिपीट. ओके स्टूडेंट्स, also I'll be repeating everything in English as well as Hindi, so do let me know if you don't understand anything that I've spoken in Hindi. और अगर मैं हिंदी में कुछ बोलूं, इंग्लिश में कुछ बोलूं जो आपको ना समझे, आप अगर चाहते हो कि वो मैं हिंदी में रिपीट करूं, तो मुझे इमीडिएटली ऑडियो ऑन करके बता देना कि सर ये वाला प्लीज हिंदी में भी एक बार बता दो मुझे. Alright students, chalo, let us begin. So what we are going to study, पहले तो वो तो जान लो, what we are going to study, students. We are going to do naming of alkyl groups, students. ठीक है, we are going to do alkyl groups का naming we are going to do, students. Okay, we are going to do naming of alkyl groups. This is very simple. Naming of alkyl groups is very simple. First, let us understand what is an alkyl group, students. Alkyl group hota kya hai? Let us understand that first. Okay, so if I see an alkane over here, students, this is which alkane? Who will tell me on audio? This is which alkane? Methane. Very good, Jyotika. This is methane. This is methane, students. Okay, this is methane. How does methane look like? It has 4 hydrogens attached to a single carbon. Correct? 4 hydrogens are attached to a single carbon. So this is methane, students. है ना? This is molecular formula of methane. And in the red box, I have structural formula of methane. In the yellow box, I have molecular formula. In the red box, I have structural formula. Is that understood? Now, if in case मैंने मीथेन से एक हाइड्रोजन चुरा लिया, what if I snatch away one hydrogen from methane? How does methane look like then? So it would look like something like this. ये देखो students, it would look something like this, correct? ये देखो. Can I see 4 hydrogens now? No, I cannot see 4 hydrogens. In fact, I can see one empty bond. Can you see one empty bond, students, over here? This bond is empty. No one is present over there. No one is present over that bond. Correct, students? Previously, this bond had hydrogen, but now this bond is incomplete. This bond is vacant. This bond is empty.
खाली है ये बॉन्ड, कोई भी नहीं है उस बॉन्ड पे। करेक्ट हो गई बात? समझ में आ गई सबको? जल्दी बताओ, sir. समझ में आ गई स्टूडेंट्स? Yes, sir. हाँ, शाबाश। सो ऐसे कंपाउंड्स को, जिस कंपाउंड में सिर्फ 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 only if one hydrogen is lost. Okay students, अगर मुझे कल, if Jyotika tomorrow says कि sir I have removed 2 hydrogens from methane, can I call it methyl? My answer will be no. You can call it methyl only if you have removed just 1 hydrogen. Is that understood, students? So how can you create alkyl from alkane? अल्केन से अल्काइल कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स, बताओ मुझे? By By removing removing one hydrogen. ओके, कैन आई रिमूव 2 हाइड्रोजन्स प्लीज? कैन आई रिमूव 2 हाइड्रोजन्स No. प्लीज? प्लीज नो. ओके, No. कैन आई रिमूव 3 हाइड्रोजन्स? No. no, कैन आई रिमूव 4 हाइड्रोजन्स? No. For no, example, decane has so many hydrogens. Decane has so many hydrogens. So can I remove one? Instead of 1, can I remove 4 hydrogens from decane to form decyl? Yes, sir. Yes. No. There should be removal of only 1 hydrogen. I cannot remove more than 1 hydrogen. Okay, students? ठीक है? Why? Okay. For producing decyl. So जब भी आपको अल्काइल बनाना है, जैसे मीथेन का बन जाएगा मीथाइल, इथेन से बन जाएगा इथाइल. सो अल्काइल ग्रुप बनाने के लिए ऑलवेज ओनली 1 हाइड्रोजन कैन बी रिमूव्ड. वैसे तो डेकेन में आई कैन रिमूव ऑल हाइड्रोजन्स, बट इंस्टेड ऑफ दैट आई विल हैव टू पुट सम अदर ग्रुप. कोई और ग्रुप तो डालना ही पड़ेगा आपको, सो एज टू बैलेंस. बट अगर आप मुझे पूछते नहीं सर मुझे तो एक अल्काइल ग्रुप बनाना है, डेकेन से एक हाइड्रोजन निकालो तो क्या बनेगा? डेकाइल. If I remove 1 hydrogen from butane, students, तो क्या बन जाएगा बताओ मुझे? Butyl. butyl, शाबाश. Very good, very good, very good, Ayush Gupta. Very good. Next, if I remove 1 hydrogen from propane, Propyl. propyl, Propyl. propyl. Can you identify one thing, students? Can you identify one thing? If you remove hydrogen, you are removing this ANE also. Check करो, and you are replacing it with YL. YL है ना? चेक करो. प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बन जाएगा? Propyl. propyl, नेक्स्ट, पेंटेन से if I remove hydrogen, Pentyl. pentyl, Pentyl. हेप्टेन से if I remove hydrogen, Peptyl. Peptyl. ऑक्टेन से if I remove hydrogen, Octyl. pentyl, Pentyl. नोनेन से if I remove hydrogen, Nocyl. Nonyl. nonyl. Correct answer. Have you taken the screenshot, students? Have you taken the screenshot? Yes, Have you taken? Okay, please take a screenshot. Please take a screenshot. Chalo, done? Done, students? Yes, sir. yes, sir. Okay, let me take you ahead. Okay, let me take you ahead. Chalo, let me ask you a few questions. Okay, and I want all of you to answer them. Okay, students? Yes, yes. मैंने क्या किया अभी? Hello, somebody's audio is on. Ashwini, your audio is on. मैंने क्या कर रही है? Okay, chalo, students. Now, give me name of this alkane. Okay, I will give you just molecular formula. You have to give me name of that alkane. Remember, students, you have to give me name of that alkane. Okay, not alkyl. I'm asking alkanes. C3H8. What is the name of this alkane? Propyl. Propane, Propane is right answer. Propane is right answer. Very good. Remember what is general molecular formula of alkane, students? Alkane हम याद है आपको? आपने 10th में पढ़ा है CnH2n+2. ये पढ़ा है आपने? General molecular sir. formula alkane का. Yes, sir. So I can identify from this formula that this is alkane. This is not alkyl. How? What is double of 3? Double of 3 is 6. 6, है ना? ये देखो ये डबल हो गया ना? अगर कार्बन इज n तो n का डबल +2. So double of 3 is 6 plus 2 is 8. So this is definitely an alkane. So you should be very smart to identify if given molecular formula is for alkane या alkyl.
Okay students, so if you have good understanding about the molecular formula, आपको कहाँ तक learn करना है, मीथेन से लेकर डेकेन तक आपको learn होना चाहिए. Okay, first 10 alkanes, students. Now if I have to write molecular formula for propyl, tell me students, कैसे लिखूं propyl? C3H कितना लिखूं? 7. 7 is right Seven. answer. 7 is perfect answer. And apart from that, I will write an incomplete bond. या यहाँ लिख दूं ऐसे students dash कर दूं, or else I can put a dash over here also. It will be understood. Okay, so इसका नाम क्या होगा students? What I will give this Propyl. compound? Propyl. Can I use this red color just to make you people understand? Propyl. है ना? ये देखो ऐसे मैं अपने बुक में भी लिखूंगा. तो if I write in this pattern in my book, students, I will easily catch. Okay, propyl. Definitely YL आ गया मतलब एक हाइड्रोजन गायब हो गया है ना? Okay. Who will tell me if this is alkane or alkyl? ठीक है, ध्यान से देखना students. C4H9. Alkyl. Alkyl. Very good, very good. Alkyl. Why? Because मैंने alkane के general formula में try मारा इसको. चलो. So C4 है. तो if it is alkane students, then H कितना होना चाहिए? 10. 10. Very good. Because 4 का डबल क्या होता है? 8. 8 plus 2 10. यहाँ पे 10 होना चाहिए था. है ना? How do we find hydrogens in alkane students? Always ये formula हम apply करते हैं. This is for alkane. Okay? This formula is for alkane students. So alkane में क्या होता है? In alkanes, always you have to double the number of carbons and add 2 into it. Double करके उसमें 2 अगर add करोगे, that will give you number of hydrogens. So अगर वो number of hydrogen correct है, तो वो आपका structure किसका है? Alkane का molecular formula. यहाँ पे check करो. 3 का डबल 6 plus 2 8. So this is alkane specifically. यहाँ पे 4 है. 4 का डबल 8. 8 plus 2 10. यहाँ पे तो 9 है. एक हाइड्रोजन चोरी हो गया. That means this is surely an alkyl, not an alkane. ये alkyl है. किस को ये नहीं समझ में आया? Please ask me students. How many of you have not understood this? Do not worry. Please ask me. टेंशन लो ही मत. मुझे पूछ लो बिंदास. चलो पूछ लो मुझे. पूछ लो स्टूडेंट्स. अगर आपको नहीं समझा, देखो अपन सब के सब यहाँ पे पढ़ाई करने आए, करेक्ट? इतना बात समझ लेते हैं. हम सब यहाँ पे पढ़ाई करने आए ना, तो कोई टेंशन नहीं लेगा कि अरे यार मैं कैसे पूछूं सर से यार. तो आपको कोई शर्माना नहीं है, ना आपको डर लगना चाहिए, ना आपको शर्म आनी चाहिए, कोई भी नहीं. क्योंकि आपने भी फीस भरा है, देवांशी ने भी फीस भरा है. तो देवांशी खाली डाउट क्यों पूछे? मैं भी डाउट पूछ सकता हूँ. ऐसा आपको होना चाहिए मन में. ठीक है? सो आप भी डाउट पूछो. साहिल भी डाउट पूछेगा, आयुष भी डाउट पूछेगा, प्रियंका भी डाउट पूछेगी, सब डाउट पूछेंगे, सब एंजॉय करेंगे. ओके, ठीक है? चलो स्टूडेंट्स, सो आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड. वेरी गुड. बिकॉज किसी ने मुझे क्वेश्चन नहीं पूछा, कोई टेंशन नहीं है. आपको अगर लेक्चर के एंड में भी ऐसा लगा अब मुझे हिम्मत आ गई है, अब मैं पूछ सकता हूँ, अगर मैं चेहरे से डरावना लग रहा हूँ आपको, तो धीरे धीरे शायद आपका डर निकल जाएगा. आप मुझे जरूर क्वेश्चन पूछना. ओके स्टूडेंट्स? ठीक है? डाउट अपने घर पे नहीं लेकर जाना, आपको मुझे पूछना है, ताकि मैं आपको डाउट्स के आंसर्स दे पाऊँ, सो दैट आप लेक्चर को एंजॉय करो, लेक्चर का मजा ले लो. ओके, सो who will tell me which alkyl is this? Which alkyl? Butyl. This is superb. Butyl. शाबाश. So I'll write BUT and जानबूझ के रेड पेन लेकर मैं YL लिख दूंगा. जानबूझ के रेड पेन से YL लिखता हूं मैं. मेरे बुक में भी ऐसे में लिखता हूं, ताकि मुझे समझ में आए. इनिशियली मुझे आदत बन जाए कि ब्यूटाइल में कुछ तो खास बात है. क्या खास बात है? एक हाइड्रोजन कम है. So will I have to put an empty bond students? empty bond बना दूं? Yes, वो sir. नहीं बनाओगे तो ये incomplete है ना? It is incomplete. I will have to draw an empty bond like this. Okay? Either this side or any other side. It will do. No problem with that. No problem with that. Quickly, who will tell me what is the name of this alkyl group? Methyl. Very well done, Prem. I could hear his voice. Prem, this is his, I think, second session. And see, very smartly First he has session, answered. sir. Acha, first session. Okay. Yes, sir.
Okay, shabash. Well done, Prem. The answer is methyl. That is perfect answer. Methyl. Chalo, students. Would you like to take a screenshot? If yes, go ahead. Take a screenshot. Ayush, I'm coming to that sec propyl वाला. Don't worry, don't worry. हम आज सीख के ही जाएंगे sec propyl. कोई टेंशन मत लेना. मैं आपको धीरे धीरे वहां तक लेकर आ रहा हूँ. ठीक है. अभी ऐसे लेकर आऊंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा. ऐसे एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं. ठीक है. एक एक सीढ़ियां चढ़ रहे हैं हम. आज के लेक्चर खत्म होने के पहले आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे. सेक प्रोपाइल, टर्ड प्रोपाइल, नियो प्रोपाइल, एन प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल सब समझ लो. सब कुछ समझ में आ जाएगा. पांचों टाइप समझ में आ जाएगा. चलो, इज दैट डन स्टूडेंट्स? तो मेरा एक हर्डल मैंने क्रॉस कर लिया. मैंने आपको ये सिखा दिया कि हाउ टू आइडेंटिफाई अल्काइल ग्रुप. हाउ टू आइडेंटिफाई अल्काइल ग्रुप्स. ओके. Can I have all of you switched on your camera, please? Or else, जो भी comfortable है, you can please switch on your camera, students. Whoever is comfortable with the camera on, you can please switch on your camera. Let me see you people. Let me see if I am teaching to human beings या खाली मोबाइल ऑन करके आप भाग गए हो कहीं पे. वो भी तो देख लूं. हाँ, ओके ओके. बहुत सारे लोग तो आए लेक्चर में यार. आयुष भी है, अक्षय भी है, आयुष गुप्ता भी है, मानव भी है, प्रेम भी है. ओके, सो डेफिनेटली 3, 4, 6 स्टूडेंट्स तो हैं. यस, बाकी का मुझे नहीं पता, बट 6 स्टूडेंट्स तो हैं डेफिनेटली इन दिस सेशन. I have 6 students in this session definitely, and I hope each one of you are understanding, because there are almost, yes, we have almost 40 students, है ना. 40 के अराउंड है हमारे पास already आज. 39, yes, 39 of you are there. So it won't be possible for me to call out everyone. सबके नाम लेना possible नहीं होगा. ठीक है. जनित्य, आदि, तो आप सबके सब मुझे बुलाते रहना. ठीक है. मुझे बोलते रहना अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो. ठीक है स्टूडेंट्स, जस्ट अ सेकेंड. Yes, students. चलो, let us begin. Let us go ahead. ठीक है, आगे चले जाते हैं. So, I hope you have taken the screenshot. I'm deleting this now. First step is done. हमको सबको आ गया how to identify alkyl groups, है ना. Let's go to step 2. Now, step 2 में I will identify what is the nature of the carbon in the alkyl group. Okay, students? And I am only interested to know the nature of the carbon on which incomplete bond is present. सिर्फ उसी कार्बन का नेचर जानने में मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है. ठीक है. देखो, मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा. I will give you 4 examples and let us try to identify the carbon nature in each one of them. Okay, students? So, identify. वैसे तो हम, आप पूछोगे सर बाकी कार्बन्स का नेचर हम पता नहीं लगा सकते क्या? लगा सकते हो. सारे कार्बन्स का नेचर हम स्टूडेंट्स पता लगा सकते हैं, बट हमको किस में इंटरेस्ट है ना. मैं तो खाली उसका ही पता लगाऊंगा, मुझे जिसमें इंटरेस्ट है. तो मैं अगर उसका सिखाऊंगा तो आपको बाकी के भी आ जाएंगे. आइडेंटिफाई नेचर ऑफ कार्बन. ओके स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई नेचर ऑफ कार्बन. ऑलराइट, चलो लेट अस बी क्विक नाउ. ओके, थोड़ा सा फास्ट हो जाते हैं. टेंशन नहीं है. अगर आपको लग रहा है कि सर ये थोड़ा सा आप ज्यादा फास्ट जा रहे हो, थोड़ा सा स्लो हो जाओ, तो मैं स्लो भी हो जाऊंगा. डोंट वरी. CH3, CH2, CH2, एंड जानबूझ के आई विल यूज रेड कलर फॉर दिस इनकम्प्लीट बॉन्ड, सो दैट आपको आइडेंटिफाई कर पाओ. ठीक है. अभी आप सीख रहे हो ना, तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं ये अलग अलग कलर यूज कर रहा हूँ. रेड कलर समझ लेना इनकम्प्लीट बॉन्ड है, बट बाद में मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए ये कलर हटा दूंगा, तो देखूंगा कितने लोग पिक कर पा रहे हैं मेरा गूगली जब मैं बॉल डालूंगा. ठीक है, रॉन्ग वन डालूंगा. ओके, ठीक है. नाउ लेट अस स्टूडेंट्स प्लीज फोकस ओवर हियर. आपको ये नहीं आता है तो आपको खाली सुनना और सीखना है. डू नॉट राइट एनीथिंग, जस्ट फोकस ओवर हियर. ओके, सो नाउ इफ आई हैव टू आइडेंटिफाई नेचर ऑफ दिस कार्बन स्टूडेंट्स, इस कार्बन का नेचर ना, तो इमीडिएटली मैं पेंसिल से इसको बॉक्स में डाल देता हूं ताकि मैं बाकी लोगों पे ध्यान ना लगाऊं. आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दिस कार्बन. ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कार्बन? What is the nature? What is the nature? What is the nature? अरे, very simple.
Very simple. It is attached directly to how many carbons? It is attached directly to how many carbons? कितने कार्बन से ये directly attached है? कितने कार्बन या कार्बन से? One is the answer. Superb. Well done देवांशी. Very good साक्षी. Very good रिशिता. ठीक है, एक ही कार्बन से स्टूडेंट्स, ये देखो. वेल डन मानसी. ओनली दिस कार्बन इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू, है ना स्टूडेंट्स? ओनली वन कार्बन, ओनली वन कार्बन, ओनली वन कार्बन. रेज योर हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. रेज योर हैंड, लेट मी सी इफ यू हैव अंडरस्टूड. रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड. शाबाश, शाबाश, क्या बात है, क्या बात है. वेरी गुड, वेरी गुड. 21 22 स्टूडेंट्स हैव रेज्ड देयर हैंड्स. 23. ओके. सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना, समझा नहीं. हाँ, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसका वापस से मजा ले लेते हैं. बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये. क्या है पता है, मेरा खाली एक क्वेश्चन था. ये कार्बन मुझे देवांशी ने क्या पूछा पता है? देवांशी ने पूछा कि सर ये जो कार्बन है जिसका इनकम्प्लीट बॉन्ड है, उसका नेचर क्या है? उस कार्बन का नेचर क्या है? तो मैंने क्या सोचा, यहाँ पे तो 4 कार्बन दिख रहे हैं. आई कैन सी 4 कार्बन ओवर हियर. देवांशी was asking about which carbon. देवांशी said कि जो इनकम्प्लीट बॉन्ड है ना, वो वाला कार्बन मैं पूछ रही हूँ, उसका नेचर क्या है. सो जस्ट टू फोकस ऑन दैट कार्बन विथ माई पेंसिल आई विल बॉक्स दैट कार्बन सबसे पहले, ताकि मेरा ध्यान और कहीं ना भटके, मैं उसी को देखूं. ओके, नाउ दिस कार्बन, क्या इस कार्बन का नेचर क्या? बहुत सिंपल है. ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है? इसके पड़ोसी कितने हैं जो इसके जस्ट बाजू में बैठे हैं? कितने कार्बन है जो बाजू में हाथ मिला के बैठे हैं? Only one. So only this is one carbon. Is this carbon directly attached to it? Students बताओ, ये वाला कार्बन directly attached है क्या? नो सर. No, sir. Oh, no, 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 no. attached. Indirectly, शाबाश. ये वाला attached है क्या directly? No. नो. No. शाबाश आदि पूरब, शाबाश. Well done. Answers देते रहना है आदि, बहुत अच्छी आदत है ये. Well done. Okay, well done students. So this is correctly identified. कितने कार्बन directly attached हैं? ऐसे उंगली से दिखाओ मुझे, उंगली से, जितने लोग मुझे कैमरा में दिख रहे हो. 1 है ना? 1 है. ओके, सो मैं इसके ऊपर लिख देता हूं स्टूडेंट्स. इसके ऊपर मैं क्या लिख रहा हूं चेक करो. 1 और डिग्री डाल दिया. 1 एंड डिग्री डाल दिया. इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है इसका मतलब? कभी देखा है ये? प्राइमरी सुना है कभी नहीं किसी ने इस बारे में? प्राइमरी बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स. ठीक है, सो ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? प्राइमरी. सो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कार्बन? आंसर मिल गया देवांशी को. देवांशी ने बोला अरे हाँ, मुझे तो आंसर मिल गया. इस कार्बन का नेचर है प्राइमरी. प्राइमरी कैसे लिखते हैं? 1 एंड डिग्री. बस समझ में आ रहा है आयुष? आयुष समझ में आ रहा है? वेरी गुड. 2 कार्बन अटैच रहेंगे डायरेक्टली तो सेकेंडरी. क्या बात है, जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है ना. सिंपल क्वेश्चन है, उसका सिंपल आंसर है. आयुष के क्वेश्चन पे आ जाते हैं. चलो, आयुष ने जो क्वेश्चन पूछा उसका मैं एग्जांपल ले लेता हूं एंड लेट अस सी. अगर आप लोगों को भी उसका आंसर आता है तो आप लोग भी मुझे प्लीज ज्वाइन करना आंसर बताने में. आयुष ने मुझे ये पूछा, सर व्हाट इफ अगर आपका स्ट्रक्चर ऐसा होता तो आप इसका आंसर क्या देते? ये देखो ऐसा. ये इनकम्प्लीट बॉन्ड मैं रेड में बनाऊं ताकि आपको समझ में आ जाए. ऊपर बनाओ नीचे बनाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता. चलो मैं ऊपर बना देता हूँ, ऊपर की तरफ. ठीक है, या इसी को मैं ऐसे बना सकता था स्टूडेंट्स. इसी को मैं ऐसे बनाऊं तो चलेगा आपको? देखो एक बार चेक करके बताओ, ये कोई और स्ट्रक्चर तो नहीं है? इज इट सेम स्ट्रक्चर? प्लीज चेक करो. इज इट सेम कंपाउंड? दिस इज सेम कंपाउंड. खाली यहां से वहां घुमा दिया. समझ में आया? खाली यहां से वहां घुमा दिया. चेक करो, ये वाला जो कार्बन है ना, इसको उठा के मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, वो वाले बॉन्ड को यहां ले लिया. कुछ चेंज नहीं किया है. जो जिससे अटैच था वो उससे अटैच्ड है. जिसके ऊपर इनकम्प्लीट बॉन्ड था उसी के ऊपर अभी भी इनकम्प्लीट बॉन्ड बैठा हुआ है. अब मुझे आयुष ने क्या बोला? आयुष ने बोला कि सर अगर मैं आपको कब मानूंगा? अगर आप मुझे इसका नेचर पता लगा के बता दो, तब मैं आपको मान जाऊं. किसका नेचर? मुझे पता है आयुष को किस में इंटरेस्ट है आज के दिन. आयुष को आज के दिन एक ही कार्बन में इंटरेस्ट है, उस कार्बन में जिसके पास इनकम्प्लीट बॉन्ड है. ओके, आयुष ने बोला वो जो जिसके पास इनकम्प्लीट बॉन्ड दिख रहा है ना, उसका मुझे नेचर बताओ. चलो, सो मैं क्या करूंगा? पेंसिल ले लूं. पेंसिल लेकर मैं क्या करूं स्टूडेंट्स? जल्दी बताओ क्या करूं? बॉक्स कर दो. उसी कार्बन को वी विल बॉक्स, है ना. दिस इज द कार्बन. ओके, नाउ लेट मी थिंक. क्या पूछूं? दिस कार्बन
is directly attached to how many carbons? बताओ. 2 carbon. Are you sure? Are you sure? ध्यान से देख लो. Please Yes, sir. focus nicely, students. Focus nicely. Mistake हो जाएगा. जिसने 2 बोला है mistake हो जाएगा. ध्यान से देख लो. I'm giving you one more opportunity. 2 एक और मौका दे रहा हूँ. 2 carbon. और मौका दे रहा हूँ. Still I'm giving you one more opportunity. ध्यान से देखो, मिस्टेक कर सकते हो. ध्यान से देखो, मिस्टेक हो जाएगा. वेरी गुड, शाबाश. आंसर इज 2. मिस्टेक कब हो जाता है? जब आप इसको बोल देते 1, है ना. मैंने क्या बोला? ध्यान से देखो, मिस्टेक हो जाएगा. मिस्टेक कर सकते हो. ज्यादा ध्यान से देखा, अरे ये तो 1 है, मिस्टेक हो गया. 2 कार्बन है ना. बहुत अच्छा. तो मेजॉरिटी लोगों ने राइट आंसर दिया है 1 and 2. So these are 2 carbons जिससे ये कार्बन अटैच्ड है स्टूडेंट्स. Therefore क्या नीचे लिखूंगा? देखो 2 लिख दिया, 2 लिख दिया, उसके ऊपर लिख दिया मैंने डिग्री, एंड ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? इसको अपन क्या बुलाएंगे? सेकेंडरी. क्या बात है, सेकेंडरी. क्या बात है, सेकेंडरी नेचर है. समझ में आ गया स्टूडेंट्स? क्या नेचर है इसका? सेकेंडरी नेचर है. क्या नेचर है? सेकेंडरी नेचर है. क्लियर है? वेल डन साक्षी. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. कैन आई राइट दिस आल्सो सेकेंडरी? इसको भी लिख दूं सेकेंडरी. ये तो सेम कंपाउंड है ना. चलो हो गया. शुड आई मूव अहेड? शुड आई मूव अहेड? शुड आई मूव अहेड? यस यस. ऑल राइट. चलो इसको डिलीट कर देता हूं स्टूडेंट्स. ये वाले को डिलीट कर देता हूं मैं. ओके इसको डिलीट करके लेट मी राइट टर्शरी आल्सो ओवर हियर. ओके टर्शरी भी यहीं पे बना देता हूं. चलो सो टर्शरी के लिए मैं आई विल यूज सम अदर कलर. टर्शरी मतलब ये देखो, ये इनकम्प्लीट कार्बन है. सपोज पहले मैं इनकम्प्लीट वाला ही बना देता हूँ. चलो टेंशन ही खत्म कर देता हूँ. पहले ये रहा कार्बन, इसके पास एक इनकम्प्लीट बॉन्ड है. सो अगर मुझे इसको टर्शरी बनाना है तो आई शुड अटैच दिस कार्बन डायरेक्टली विथ हाउ मेनी कार्बन्स? 3 carbon. वेरी गुड, वेरी गुड. तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, चालाकी दिखा रहा हूं मैं. ये देखो 1 2 3 है ना. अब बैलेंस कर लो इसको H से. CH3 CH3 CH3. Should I write one more H over here students? ये लिख दूं? ये H लिख दूं मैं? Yes, sir. बताओ मुझे. नो H नहीं आएगा. H आया तो उसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी, है ना. 4th बॉन्ड आ जाएगा फिर तो. ऑलरेडी 3 बॉन्ड कंप्लीट है ना. चेक करो. 4था बॉन्ड कंप्लीट मत करना, खाली रखना, वरना वो अल्केन बन जाएगा. अब अल्काइल है देखो. नाउ दिस इज अल्काइल. इफ आई पुट H ओवर हियर वो अल्केन बन जाएगा स्टूडेंट्स. एल्केन बन जाएगा. समझा? ये देखो, ये देखो ऐसा कुछ. ये देखो व्हाट इफ आई पुट H ओवर हियर. अगर बॉन्ड रहा फिर भी रेड वाला, तो ये रॉन्ग स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स. चेक करो ये स्ट्रक्चर रॉन्ग हो जाएगा. व्हाई? चेक करो कितने बॉन्ड्स है. 1 2 3 एंड ये 4th. 4 बॉन्ड तो हो गए कार्बन के. कार्बन के खाली 4 ही बॉन्ड्स हो सकते हैं. ये सर 5वां आपने कहां से डाल दिया? क्या कर रहे हो सर? ये तो आप मिस्टेक कर रहे हो. समझ में आया स्टूडेंट्स? सो दिस इज रॉन्ग. देयरफॉर H कभी नहीं डालना. ये हो गया अल्काइल. अगर आपने H डाला तो स्ट्रक्चर करेक्ट है, तो आपको इनकम्प्लीट वाला बॉन्ड हटा देना था वहां से, है ना, बिकॉज वो तो अल्केन हो गया. ओके स्टूडेंट्स, ये क्लियर है? अब इसका नेचर मुझे कौन बताएगा? टेल मी. Tertiary. वेरी गुड. व्हाई? बिकॉज इट इज अटैच्ड टू 3 कार्बन्स डायरेक्टली. 1 2 3, है ना. सो नेचर क्या हो गया? टर्शरी. क्या नेचर हो गया? टर्शरी. टेक अ स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स. टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू शुड बी वेरी वेरी हैप्पी कि आपको बहुत आसानी से ये कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक आपने समझ लिया. हमारा स्टेप 2 पूरा हो गया बाय द वे. स्टेप 2 पूरा हो गया स्टूडेंट्स अपना. और अभी चलने हैं हमको 5 स्टेप्स और चलने हैं, और आज का लेक्चर तब तक खत्म हो जाएगा. हमको सब कुछ आ जाए. चलो, इज दिस क्लियर नाउ स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर नाउ? इज दिस Yes, क्लियर sir. नाउ? Yes, sir. ओके वेरी गुड. नेचर तो मुझे समझ में आ गया. नेचर तो मुझे समझ में आ गया. अब मेरे पास स्टूडेंट्स प्राइमरी टूल मेरे पास आ चुका है. सारे हथियार मेरे पास आ गए हैं. अब मैं बढ़ रहा हूं नेमिंग की तरफ. चलो अब चलते नेमिंग करने. अब नामकरण करने का चल रहे हैं. ठीक है. जैसे सपोज आपको अगर मैं बोलूं कि
इफ आई से कि श्रेया सांघवी, चलो ठीक है, श्रेया का एग्जांपल, if I say Shreya Sanghvi is expert in giving names to newborn babies, ठीक है, श्रेया को हमने बोला कि she is an expert, she will give proper, एकदम बोलते हैं ना, कुंडली देख के, राशि देख के, सारे वो साइंस एंड सब कुछ देख के she can suggest a proper name to newborn babies. So वो जो नॉलेज है उसका, वो नॉलेज उसको मिल गया, ये आपको नॉलेज मिल गया स्टूडेंट्स. अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ न्यूबॉर्न्स के बेबी के साथ, न्यूबॉर्न्स बेबी के पास लेकर चल रहा हूँ. अब आपको उनको देख के उनके नाम आपको बताने हैं, ठीक है, उनके आपको नाम बताने हैं. तो कुछ रूल्स रहेंगे उसके, वो रूल्स भी मैं आपको धीरे धीरे बताते चलूंगा रास्ते में, ठीक है. चलो सबसे पहला बेबी के पास चलते हैं. सबसे पहला बेबी है, इस बच्चे में स्टूडेंट्स, ये देखो, ये आपके रूल्स हैं, इतने आपको प्रीफिक्सेस यूज करने हैं, ठीक है. जैसे कोई बोलता ना कि इस बच्चे का नाम श्री से शुरू होना चाहिए, इस बच्चे का नाम प्र से शुरू होना चाहिए, इस बच्चे का नाम इससे एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा. आज के लेक्चर में हमारे पास ऐसे 5 प्रीफिक्सेस हैं. तो आपके पास 5 ऑप्शंस हैं. इस बच्चे का नाम एन से शुरू होना चाहिए, इस बच्चे का नाम आइसो से शुरू होना चाहिए, इस बच्चे का नाम नियो से शुरू होना चाहिए, इस बच्चे का नाम सेक से शुरू होना चाहिए, इस बच्चे का नाम टर्ट से शुरू होना चाहिए. So what are these? These are prefixes, students. ठीक है, prefix in alkyl naming. सर प्राइमरी नहीं होएगा? होगा ना प्राइमरी, बट प्राइमरी में नाम वैसा नहीं होगा. ये जो है ना, ये तीनों these are for primary. समझा? प्राइमरी देंगे तो ये तीनों यूज करने वाले हैं. इन तीनों में से anyone. I will give you conditions also when you have to use which one. Okay, so prefix in alkyl naming, these are the 5 prefixes which we are going to learn today, students. These are the 5 prefixes which we are going to learn today. Am I clear with this? ये 5 prefixes हैं जो हम यूज करने वाले हैं. तो चलो चल दें, स्टार्ट करें जर्नी अपना स्टूडेंट्स. Should we start the journey? I will tell you, ठीक है, मैं आपको गाइड करूंगा. I will help you very nicely कि आपको कौन सा 5 में से कौन सा आपको यूज करना है. I will teach you, only then I will ask you. पहले मैं आपको पूछूंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स. फिर सॉरी, पहले मैं समझाऊंगा, फिर मैं आपको पूछूंगा. ओके, चलो रेडी. सो हमको क्या क्या आता है? हमको आता है ये पहचाना, वी कैन नाउ आइडेंटिफाई वेदर इट इज अल्काइल और अल्केन, ठीक है. वी कैन नाउ आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ कार्बन. एंड सर यू विल हेल्प मी टू, आई विल गिव यू दीज 2 आंसर्स, यू विल हेल्प मी बिकॉज ऑफ दीज 2 आंसर्स, which one should I select out of these 5? ओके स्टूडेंट्स, मैं रिपीट करता हूं. एज अ स्टूडेंट आपके मन में ये होना चाहिए, सर आई कैन आइडेंटिफाई इफ इट इज अल्केन और अल्काइल. I can do that for you. Sir, I can identify what is the nature of the carbon which has incomplete bond. And also, sir, if you will help me with the rules, I can also tell you which one should you use from these 5. Okay, done students? Chalo start kare. Okay, I hope you've taken the screenshot. And this is my first example now. First example for you students. CH3, CH2, CH3, CH3 and dash. Just to help you, I'm using the red color. Okay. Chalo. If I ask you, wait, Sakshi, wait. Sakshi, wait. Don't be in hurry. Sakshi, don't be in hurry. I'll teach you. Step by step चलेंगे, ठीक है साक्षी? चलो स्टूडेंट्स, I want to give name to this newborn baby. इसका मुझे नाम देना है, ठीक है स्टूडेंट्स. एंड नेम के 2 पार्ट्स होंगे. ध्यान दो, कोई कुछ भी नहीं लिखेगा. डू नॉट राइट एनीथिंग. फोकस ओवर हियर. अदरवाइज आप मिस कर जाओगे, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा. फोकस करो. मेरे सामने ये बच्चा रख दिया किसी ने, बोला इसका नाम दो. चलो इसका नाम बताओ क्या है. तो मैं पहले उसको बोल दूंगा इट विल हैव 2 पार्ट्स. नेम के कितने पार्ट्स होंगे? 2 पार्ट्स होंगे डेफिनेटली. ओके, 2 पार्ट्स होंगे. आपको भी मुझे ऐसे आंसर देना, सर 2 पार्ट्स पहले गिन लो मेरे तरफ से. ठीक है, ले लिया 2 पार्ट्स. पहले वाला ये पार्ट स्टूडेंट्स, ये ब्लैंक में आप क्या दोगे मुझे? अल्काइल, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन्स. चलो बोलो, which alkyl is this? पेंटाइल. Pentyl. Superb. Pentyl is right answer. Well done.
पेंटाइल इज राइट आंसर, वेल डन, वेरी वेल डन। अगर आपके दिमाग में पेंटाइल आया है, यू शुड क्लैप फॉर योरसेल्फ, यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आपके दिमाग में पेंटाइल नहीं क्लिक हुआ, नेक्स्ट टाइम इट शुड क्लिक इमीडिएटली। काउंट करने का कार्बन और अल्काइल उसमें लगा देने का। ठीक है, ये करेक्ट है ना, ये करेक्ट है। अब आप पूछोगे स्टूडेंट्स, ये अब मैं बता देता हूं आपको कि यहाँ क्या आना है, यहाँ आना है प्रीफिक्स। अच्छा, प्रीफिक्स आना है यहाँ पे, तो प्रीफिक्स के तो कितने ऑप्शंस हैं मेरे पास? कितने ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स? 5। वेरी गुड, 5 ऑप्शंस, 5 ऑप्शंस। तो मैं आपको हेल्प करने वाला था ना, मुझे याद आया, आई वाज गोइंग टू हेल्प यू पीपल। चलो, सो आई एम स्टार्टिंग माय हेल्प। ठीक है, सो मैं आपको अभी क्वेश्चंस पूछूंगा, आप मुझे आंसर दोगे। क्वेश्चन नंबर 1, what is the nature of carbon having incomplete bond? Secondary nature. Secondary. Third nature. Tertiary. Tertiary is right answer. Torsion. Tertiary is right answer. ये देखो, एक भी स्टूडेंट ने मुझे ये नहीं बोला कि सर पहले इनकम्प्लीट वाला जो बॉन्ड है उस कार्बन को आप पहले पेंसिल से बॉक्स में करो प्लीज, मुझे बाकी पे फोकस नहीं करना है, मुझे सिर्फ उसी पे फोकस करना है। एक भी स्टूडेंट ने मुझे ये नहीं बोला। So first thing is you should box the carbon which has incomplete bond, box that carbon which has incomplete bond, and then you will start. तो आपका मिस्टेक होता ही नहीं। जितने लोगों ने बोला सेकेंडरी, उनका मिस्टेक होता ही नहीं। जैसे आप बॉक्स डालोगे, यू कैन स्टार्ट पुटिंग एरो। ये देखो 1 2 3, 3 कार्बन्स है ना स्टूडेंट्स, तो क्या नेचर है इसका? Tertiary. Tertiary. Very good, tertiary. So if the nature is tertiary, immediately go and write, students, immediately जाके हम क्या लिख देंगे? टर्ट। ये देखो, टर्ट लिख के डैश मार दिया मैंने। टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स, please take a screenshot immediately. Last 1 minute pending for the meeting to end. Last 1 minute students, take a screenshot and join me again. वापस से ज्वाइन करो, बहुत मजेदार किस्सा होने वाला है। ये सेशन सबसे इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है आज के लेक्चर का। ठीक है, ज्वाइन मी इमीडिएटली।